इंग्लिश में मॉडल्स को कैसे यूज़ करें, कैसे बोलें कि आप कोई काम करने के लिए मजबूर हो, कि आप कोई काम करना चाहते हो, कि कोई काम आपके लायक है या आप किसी काम करने के लायक हो। कैसे बोला जाए कि आप कोई काम करने की हिम्मत रखते हो। आप किसी से कोई अगर परमिशन मांग रहे हो तो कैसे मांगें। ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम अक्सर बोलना होता है, स्पेशली जब हम ऑफिशियल लाइफ में होते हैं। वी स्पीक सच सेंटेंसेस not only in official life but also in our domestic life. So how to speak all these things in English? How do we use those models, the models which we have been hearing since early classes actually. तो आज मैं आपको सिखाऊंगा the real use, the practical use of these models. Let's move. Before going further, I request you all to subscribe my channel and please keep sharing my channel to as many people as possible, because your sharings, your liking our video and your subscriptions gives us motivations and encouragement so that we can make such informative, such interesting, such marvelous video. चलिए start करते हैं। तो before shooting this video, if you already have seen my earlier video, if you haven't, then I'll send the link to those earlier video to my descriptive part. So please, I refer you to watch these videos earlier so that you can understand the overall context of learning English language. आज हम मॉडल्स के यूजों को समझेंगे, या इंग्लिश में मॉडल्स वर्ब्स क्यों होती हैं, क्या उनका पर्पस है, क्या उनका मोटिव है। मॉडल्स कैसे हम इनको इंग्लिश लैंग्वेज में या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हांस करने के लिए, नॉट इन syllabical form but in your speaking or in your writing purpose, how do we use these models in all these purposes. So let's learn, let's understand. Now if you read this word models, okay, do not say that I have started teaching grammar. No, I'm not teaching you grammar to you. I'm just teaching you how do we use these grammatical concepts in your writing and speaking skills. As I promised, my purpose, my motive to teach you each and every concept, to make you learn, to actually feel you that you are learning everything just for the purpose of your speaking and writing. Because the main function of language is to how to speak, how to write. This is the only main function of your language. So language को develop कैसे करेंगे, कैसे किया जा सकता है, आप और कितने अच्छे से सेंटेंसेस लिख बोल सकते हो, इन मॉडल्स को थ्रू समझेंगे। सो मॉडल्स, व्हेन यू रीड दिस वर्ड वेरी केयरफुली, मॉडल्स, नाउ दिस इज नॉट ई, दिस इज ए. So model word, where has that word come from? So basically models has come from word mood, or we can say feeling, okay. So basically when we have feeling, when we have mood, when we have an approach towards an action, आप कोई एक्शन लेते हो, उस एक्शन को लेकर के आपका एक मूड, एक अप्रोच, एक फीलिंग होती है। उसको जब भी हमें एक्सप्रेस करना, व्हेन टू एक्सप्रेस दोज एक्चुअली moods or feelings, we use these words, okay. For example, whether you are given an action and you are not so much confident of doing that action, okay, you fear that you will spoil that action or you are not able to do that action. आप उस काम करने के लायक नहीं हो, या आप उस काम करने के लायक हो, उस काम को आपसे अच्छे और कोई नहीं कर सकता। जब इस तरह की आपकी अंदर फीलिंग आती है किसी एक्शन को लेकर के, तब हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसे मान के चलिए, अगर आपका कोई एक्शन आपके लिए मजबूरी है, तो आपको कुछ नहीं, पैटर्न वही फॉलो करना है विच आई हैव टॉट यू इन अर्लियर वीडियो, जहाँ पर आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि एक्शन कौन करेगा, एक्शन किस पर होगा, सॉरी एक्शन क्या है और एक्शन किस पर होगा, ये अपने आप से क्वेश्चंस करना है। क्लियर? हु, व्हाट, हु, बस इसमें
एक चीज़ और नई आ गई, वी हैव एडेड एन एक्स्ट्रा थिंग। मैंने कहा था इसी तरीके से आपको इंग्लिश, पूरी इंग्लिश सिखा के रहूँगा, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक वर्ड, आपका एक एक वर्ड कैसे हमें यूज़ करना है हमारा राइटिंग और रीडिंग पर्पज़ के लिए, स्पीकिंग पर्पज़ के लिए, हर चीज़ को इस हर एक सेंटेंस में जोड़ते हुए चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने आपका सफ़र, आपकी जो जर्नी दैट स्टार्टेड विद वेरी सिंपल सेंटेंस हैज़ बिकम नाउ अ कंप्लीट पैराग्राफ। सो सब्जेक्ट और एक्शन के पहले एक वर्ड और नया वर्ड ऐड हुआ, दैट इज योर मूड। व्हाट इज इट? मूड। तो आपका इस एक्शन को लेकर के क्या मूड है, टू कन्वे दैट मूड हम यहाँ पे वो एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस चलाते हो, दिस इज योर रेगुलर एक्टिविटी, आई ड्राइव अ बस। अब इस ड्राइविंग बस जो आपका एक्शन हो रहा है, ये आपके लिए अलग अलग फीलिंग्स, इस एक्शन को लेकर के यू मस्ट हैव डिफरेंट फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बस चलाना आपकी मजबूरी है, बस चलाना आपकी एबिलिटी है, बस चलाना आपका हिम्मत का काम है, बस चलाना आपके लिए ज़रूरत का काम है, बस चलाना आपके लिए आपकी चॉइस है, बस चलाना आपकी ड्यूटी है। क्या है? जो भी आपको फील होता है, एनी ऑफ दीज मूड्स, दीज फीलिंग्स, आप अपने मेन एक्शन के साथ उसको जोड़ दो। आई मस्ट ड्राइव, आई कैन ड्राइव, आई गेट टू ड्राइव, आई नीड टू ड्राइव, आई शुड ड्राइव एंड आई गॉट टू ड्राइव। सो कुछ नहीं करना है आपके मेन एक्शन में, आपकी जो भी फीलिंग आपको फील होती है, जो भी आपको लगता है अपने एक्शन को लेकर के, उसको इसके साथ लिख देना है एंड द गेम फिनिश। And this is how you can speak a sentence. You can speak a sentence carrying your feeling, your emotions, your mood towards an action. I'm sure आपको ये समझ आया होगा. I want you to take a screenshot or note down everything as I told you earlier to please keep or carry a pen and register while watching this video so that you can note down the important points. Okay, so now I'm going to make a table through which you will learn all the models or the important models or all the important moods and expressions which we can express through different models. Okay, so let's see. So here I write all the moods and here I write all the models. Okay, what model we use if the mood is in present tense, if it is in past tense, what else we use? Okay, present and past, we have two important tenses only. Okay, so suppose your mood towards an action, your mood towards an action is an ability, is a capacity, और इट इज़ एन अथॉरिटी। इन तीनों में से कुछ भी है, आप जो एक्शन कर रहे हो, द एक्शन दैट यू हैज टेकन टू, क्या वो एक्शन आपके लिए एबिलिटी है, क्या वो कैपेसिटी है या अथॉरिटी है, एनी ऑफ दीज थ्री, तब आप प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड के साथ जा सकते हैं। क्लियर? अगर आपके लिए सेम एक्शन पॉसिबिलिटी है, सेम एक्शन आपके लिए एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप पूछ रहे हो, परमिशन ले रहे हो, देन you go with may in present, might in past. If you think an action for you is a compulsion or obligation, then you go with must or has have to, any of these three models. Okay, and had to for past. If you think an action is for you is nothing but a duty, but a matter of duty, you go with ought to in present, ought to in past.
If you think your action that you are taking to is nothing more than a choice or an advice, you go with either should or had better or only in past should. ओके इनके बाद अगर आपको लगता है द एक्शन दैट यू आर टेकिंग टू इज अ करेज, ब्रेवरी, ब्रेवरी का काम है, आपने जो काम किया दिस इज जस्ट इक्वल टू ब्रेवरी और एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, यू गो विद डेयर टू प्रेजेंट एंड डेयर टू पास्ट। इफ यू थिंक द एक्शन दैट यू आर डूइंग, जैसे पानी पीना, खाना खाना, these are your necessity. If you think your actions are necessity, then need to for present and needed to for past. Similarly, अगर आपको लगता है कि आपका एक्शन, आप जो एक्शन ले रहे हो वो एक आपकी आदत है, हैबिट है, व्हाट इज इट, हैबिट, तो प्रेजेंट में we shall go either first or fifth in either of these two verb forms. In past we go with used to or would in past, present में past पे go। और अगर आपको लगता है कि आप जो एक्शन ले रहे हो वो एक एडिक्शन है, व्हाट इज इट, इट इज एन एडिक्शन, नशा, हैबिट आदत और एडिक्शन नशा। हैबिट हम अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से करते हैं, जहाँ पर हम करते हैं पर हम पता ही नहीं चलता कि इस काम को हम लगातार करते आ रहे हैं, और ये हमारे इसके लिए हमारी बॉडी पूरी तरीके से क्या है, एक्सेप्टिंग है, क्लियर। बट एडिक्शन नॉन होता है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के साथ करते हैं। जैसे अगर आप बैठे बैठे अपना नाखून काट रहे हो, खा रहे हो, यू आर बाइटिंग योर नेल्स, दिस इज अ हैबिट। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई अच्छी या बुरा कोई एडिक्शन है, जैसे ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ना, दे कैन बी गुड और बैड, तो इस तरह के एक्शंस को अपन बोलते हैं एडिक्शन। सो एडिक्शन है, देन हम लोग किसके साथ जाएंगे, इन प्रेजेंट वी शैल गो विद इज अबाउट एंड इसके साथ यूज टू एंड आईएनजी। पास्ट में यही एडिक्शन वॉज वर्ड के साथ एक्सप्रेस करते हैं, वॉज वर्ड यूज टू विद आईएनजी को बस यूज करिए इन मॉडल्स, इन वर्ड्स को, एंड एक्सप्रेस योर डीप रूटेड फीलिंग्स टुवर्ड्स योर एक्शन। नथिंग यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग एल्स टू एक्सप्रेस them. These are the only models, and they are very often to learn. You have been learning them for a long time. Still, if you are confused, I believe after going through this table, you will never get confused in learning models. Models are so much frequent in our speaking, writing, and everything else, or other activities to be used. Okay, so when you go through this table, you will understand how do we speak. Now let me make each sentence one sentence of each model. So when अगर कोई एक्शन मेरे लिए एक स्किल का, टैलेंट का, एबिलिटी का, पॉजिटिव नेगेटिव वे में अथॉरिटी का काम है, कैन गो विद कैन। ओके, लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। ओके, दिस इज प्रेजेंट। अगर यही चीज़ पास्ट में चली जाए तो आई कुड स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। अगर कोई काम, अच्छा, अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो, अभी भी कंफ्यूज हो कि व्हाट इज एबिलिटी एंड व्हाट इज पॉसिबिलिटी, हाउ टू डिफरेंशिएट दैम, सो बेटा पॉसिबिलिटी इज समथिंग विच यू हैव नो कंट्रोल ओवर, whereas ability means the action which you have complete control over. Okay, for example, you can control your own activity, okay, or an activity that actually is related to your skills or talent, like I can defeat my rival in the wrestling. I can defeat my rival in the wrestling. So यहाँ पर आपकी पावर की बात हो गई, so you use can. But अगर अपन किसी और की बात कर रहे हैं,
है ना, किसी और के एक्शन की बात कर रहे हैं जिस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, देन वी ऑफन गो विद मे. ओके, लाइक ही मे कम ऑन टाइम, he may come on time. So we are not sure whether he will be able to come or not. So when we are not sure of his skill or talent, so then we go with may. Okay? Then अगर आपके लिए कोई एक्शन मजबूरी है, okay, like we must rather I say read books, or we must डू ऑल दीज थिंग्स. ओके, या फिर कोई भी आप मजबूरी वाला एक्शन लीजिए, लाइक आई मस्ट ईट दोज पिल्स टू रिकवर. अब मुझे वो गोलियां खानी पड़ेंगी रिकवर होने के लिए. दिस इज़ कंपल्सन. प्लीज़ ट्रांसलेट ना करें. ट्रांसलेट करने पर बहुत गलतियाँ होती हैं. एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक दैट वी ऑफन डू है ना, और हम लोग कैन, मस्ट और डेयर में मिक्स हो जाते हैं. जैसे हमारे दिमाग में आया कि मैं इस शेर से लड़ सकता हूँ, तो जनरली हम लोग जब ट्रांसलेशन के थ्रू मॉडल सीखते हैं तो सत्ता को देख कर के इसको जनरली बच्चा कैसे बनाता है, हम कैसे बनाते हैं, आई कैन फाइट विद दैट टाइगर, विच इज़ रॉन्ग. बिकॉज टाइगर से लड़ना बात एबिलिटी की नहीं है, बात आपकी हिम्मत की है. तो बात हिम्मत की हो तो पीछे कुछ भी आ रहा हो, वी हैव टू गो विद डेयर. आई डेयर टू फाइट विद दिस टाइगर. ओके, ऐसे ही मैं 4 मंजिल से छलांग मार सकता हूँ. ये एबिलिटी का काम नहीं है. इट्स नॉट मैटर ऑफ एबिलिटी, इट्स अ मैटर ऑफ ऑब्वियसली करेज. आपकी हिम्मत की बात है. तो यहाँ पर हिम्मत के लिए अपन डेयर को यूज़ करेंगे, ना कि कैन को. तो क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस? आई डेयर टू जंप ऑफ द 4th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. ओके, सो ध्यान रखिए, नेवर लर्न थिंग्स फ्रॉम translation or Hindi translation. Just learn the real sense, the true purpose of that particular word in English itself, and use accordingly. Okay, I think if you will learn that in that fashion, you will never make any grammatical error. It will help you not only in your speaking writing purpose, it will also help you in actually in the preparation of your competitive exam if you are preparing. Okay, so सही तरीका यही है. जैसे कई बार हम लोग ought to, must और should में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई ought to obey my parents सही है, आई must obey my parents सही है, या आई should obey my parents सही है. तो पेरेंट्स का obey करना हमारा एक स्पिरिचुअल ड्यूटी है. When we talk about spiritual, idealistic, when we talk about all kind of duty, we always go with ought to. So I ought to obey my parent is correct. Okay, ना कि must या should लगाना है. Okay, similarly हमें अपने कानून का पालन करना चाहिए. It is not a choice, it is again a duty. तो ought to is correct. Okay, should को जनरली choice के लिए, जैसे अब मैं क्या करूँ, what should I do, है ना, मुझे अब ये करना चाहिए या मैं बाहर चला जाऊँ, I should go outside. So whenever you actually find your action, it's just a choice. Nobody is forcing you to do that, or even you do not find it a duty. So you can go with should. Okay. So must आपके लिए मजबूरी है. वो action which you are not ready, or which your brain is not ready to do, still you are doing. Like most of the work that we do at offices or formal life, we are not actually we do not want to do them. Still we have to do them. So we can use must, dear. ओके, सो डेयर टू आपको समझ में आ गया. अच्छा, कई बार हम लोग नीड टू में और मस्ट में भी मजबूरी और ज़रूरत में कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे मुझे अब खाना खाना पड़ेगा, या हमें खाना खाना पड़ता है, बोलते हैं ना, हमें खाना खाना पड़ता है. तो खाना खाना एक पढ़ना एक इट्स नॉट कंपल्सन, इट्स योर नेसेसिटी. योर बॉडी नीड्स फूड. ओके, तो जब हम नीड की बात करेंगे तो हमेशा नीड टू प्रेफर करेंगे, ना कि मस्ट को प्रेफर करेंगे. ओके, like we need to drink a lot of water during summer or during hot season. So यहाँ पे जैसे गर्मियों में बहुत पानी पीना चाहिए, तो कुछ सलाह नहीं है. इट्स नॉट एडवाइस, इट्स नॉट ड्यूटी, इट्स नॉट कंपल्सन, इट्स योर नीड. तो हिंदी में क्या निकल के आता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इट हार्डली मैटर्स. व्हाट मैटर्स द सेंस, द एक्चुअल सेंस. ओके, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं. आई एम श्योर आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और इस वीडियो को 2-4 बार देखोगे
आपको समझ आ जाएगा कि मॉडर्न समय कैसे यूज़ करना है। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ टर्न ऑन योर notification bell icon so that you can get the notification of my such interesting video further. Thank you very much for giving me your precious time. Thank you.